Greetings of the day. I, Chavi Gupta, welcome you all in today's session. We have completed our chapter that is matter in our surroundings. Now we will do the NCERT exercise. The first question is convert the following temperatures to Celsius scale. आपको ये सारे temperatures क्वेश्चन नंबर 1 में आपको Celsius scale में convert करना है. The first part is 293 Kelvin. We know that for a Kelvin temperature we need the temperature in degrees Celsius plus 273. Okay, so if we have given 293 Kelvin, so what we will do, 293 equals to degrees Celsius plus 273, then 293 minus 273 equals to degrees Celsius, that will come out to 20 degree Celsius. So this is the way how we will do it. Now see, 293 Kelvin equals to 293 minus 273 equals to 20 degree Celsius. Next is 470 Kelvin, that is 470 equals to temperature in degrees Celsius plus 273. Now what you will do, 470 minus 273 will come out to be 197 degree Celsius. Now next question is convert the following temperature into Kelvin scale. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आपको टेम्परेचर को केल्विन स्केल में कन्वर्ट करना है. अभी तक हमारे पास था कि केल्विन से सेल्सियस में जाना था, सॉरी सेल्सियस से केल्विन में जाना था. अब हम क्या करेंगे, केल्विन स्केल में कन्वर्ट करेंगे. नाउ फर्स्ट इज 25 डिग्री सेल्सियस. सो व्हाट इज 25 डिग्री सेल्सियस? वी नो दैट टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273 इक्वल्स टू केल्विन. तो व्हाट वी विल डू, वी विल पुट द वैल्यू इन टेम्परेचर in degree Celsius, that is 25 plus 273 plus 273, that will come out with 298 Kelvin. Now next part is 373 Celsius. So 373 plus 273 will give you 646 Kelvin. Now next question is give reason for the following. That is naphthalene ball disappears with time without leaving any solid. जो आपके नैप्थलिन बॉल्स होते हैं या जो मॉथ बॉल्स होती हैं वो आपके डिसअपियर हो जाती हैं, बट वहाँ पे वो कोई भी रेसिड्यू नहीं छोड़ती, वहाँ पे कोई सॉलिड सब्सटेंस नहीं छोड़ती. जबकि हम जानते हैं कि नैप्थलिन बॉल क्या आपकी सॉलिड है. हमने पढ़ा है कि सब्लिमेशन में नैप्थलिन बॉल सॉलिड से डायरेक्टली गैसेस स्टेट में मतलब वेपर स्टेज में चली जाती है. दैट्स वाई वहाँ पे कोई रेसिड्यू नहीं रहता. सो नैप्थलिन अंडरगोज सब्लिमेशन easily, that is a change of state of naphthalene from solid to gas without intervention of liquid state. that means कि यहाँ पे कोई भी liquid state नहीं आ रही है. thus naphthalene ball keeps on forming naphthalene vapors which disappear into the air with time without leaving any solid. Now next question is we can get the smell of perfume, sorry smell है बेटा, we can get the smell of perfume सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे. जब आप रूम के कॉर्नर में परफ्यूम स्प्रे करते हैं आपको फिर भी बहुत दूर तक परफ्यूम की स्मेल आती है. वाई? इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन, एंड यू नो दैट डिफ्यूजन ट्रेवल्स फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्यूट. नाउ गैसेस पार्टिकल्स possesses high speed and move very rapidly in all directions. Okay, when perfume is sprayed, it particles diffuses into the particles of air at a very fast rate. Why? Because you know that the gases has least intermolecular force of attraction and have a more intermolecular space. So that's why the particles of perfume diffuse faster in gases and reach our nostrils. This enables us to smell the perfume from a distance. So next question. Arrange the following substance in increasing order force of attraction. Forces of attraction छोटे से बड़े में जाना है, मीन सबसे कम किस में है, देन उससे बड़ा, देन उससे बड़ा. नाउ यू नो ऑप्शन था वाटर, शुगर एंड ऑक्सीजन. You know that oxygen is a gas and gas has least molecular force of attraction. So oxygen is first. Now water is somewhat intermolecular force of attraction as compared to gases. So next is water. Then solid has most intermolecular force of attraction. So it is the last one. So we see that oxygen has the least, then water, and then sugar. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट. अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि फिजिकल स्टेट क्या है. फिजिकल स्टेट मीन्स सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है. नाउ 25 डिग्री सेल्सियस पे आपका टेम्परेचर क्या होता है, नॉर्मल. तो नॉर्मल स्टेट में तो वाटर लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है. नाउ नेक्स्ट इज 0 डिग्री सेल्सियस.
आप 0 डिग्री सेल्सियस पे कैसे एग्जिस्ट करेगा? इट कैन बी सॉलिड और इट कैन बी लिक्विड. नाउ वी हैव understand the term that is latent heat of fusion. If we talk about water at 0 degrees Celsius, that means it is cold water. There we don't have any latent heat of fusion. So in that case, the water will exist in the form of liquid. But if it acquires a latent heat of fusion, it will convert into ice state. So it is known as solid state. So in at 0 degrees Celsius, both ice and liquid water can exist. At 0 degrees Celsius, after getting the heat equal to the latent heat of fusion, the solid form of water, that is ice. So it starts changing into water. That means कि अगर आप लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की बात नहीं करते तो वो लिक्विड स्टेट में रहेगा, बट अगर आप लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की बात करते हैं तब वो सॉलिड स्टेट में रहेगा. नाउ 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस मीन्स that it can exist in liquid state at 100 degree Celsius. At this stage, if we keep on supplying, अगर आप 100 degree Celsius वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है, so in that case it is at liquid state. बट जहाँ पे आप latent heat of vaporization की बात करते हैं, there it converts to gaseous state. Now next question, give reason to justify. आपको justify करना है और आपको उसके दो रीजन्स बताने कि ऐसा क्यों है. वाटर एट रूम टेम्परेचर इज लिक्विड. रूम टेम्परेचर पे आपको वाटर लिक्विड होता है. क्यों होता है? रूम टेम्परेचर सपोज इज योर 25 डिग्री सेल्सियस. बिकॉज एट रूम टेम्परेचर वाटर हैज़ नो शेप, कोई शेप नहीं उसकी, बट हैज़ फिक्स्ड वॉल्यूम. ये हमने पढ़ा था कि लिक्विड्स की कोई फिक्स शेप नहीं होती, बट उनकी एक फिक्स्ड वॉल्यूम होती है. एंड देयरफॉर इट ऑक्यूपाइज द शेप ऑफ द कंटेनर. नेक्स्ट, एट रूम टेम्परेचर वाटर फ्लोज ईजली. सेकेंडली कि रूम टेम्परेचर पे वो ईजिली फ्लो कर जाते हैं. नाउ नेक्स्ट इज एन आयरन अलमीरा इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. कि रूम टेम्परेचर पे आयरन अलमीरा आपका सॉलिड है बिकॉज इट हैज़ डेफिनेट शेप. ऑब्वियसली सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप एंड उनकी वॉल्यूम फिक्स है रूम टेम्परेचर पे. थर्ड, इट इज़ रिजिड एज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. आपको पता है सॉलिड रिजिड्स होते हैं, वो फ्लो नहीं कर सकते रूम टेम्परेचर पे. दैट्स वाई द आयरन अलमीरा इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. नाउ नेक्स्ट, वाई इज आइस एट 273 Kelvin मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर? दिस 273 Kelvin means 0 degree Celsius. How? See, we have studied that Kelvin equals to degree Celsius plus 273. Fine. If I take this as 273 Kelvin equals to 0 degree Celsius plus 273, you will what get? You will get 273 minus 273, that is 0 degree Celsius. So we get it as 0 degree Celsius. So if it is written that water ice is 273 Kelvin is more effective, that means it is 0 degree Celsius. Okay, then water at 0 degree Celsius, same concept, that is latent heat of fusion. See, cooling takes place when the heat is removed from a system. कूलिंग तभी जो बॉडी में से हीट रिमूव होगी. नाउ इन केस ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इट विल फर्स्ट टेक हीट. कौन सी हीट ली उसने? लेटेंट हीट फ्रॉम द मीडियम. मीडियम क्या है कि वो अपने आप को कूल करने में ले रहा है. रेफ्रिजरेटर में उसने सिस्टम की हीट ले ली और अपने आप को कूल करना स्टार्ट कर दिया टू कन्वर्ट इट सेल्फ इंटू वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस. वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे कन्वर्ट हो गया आपका. देन इनटू वाटर एट हायर टेम्परेचर. तो उससे क्या होगा? जब वो आइस वाटर में कन्वर्ट होगा तो वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा. इन शॉर्ट, इन केस ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस देयर विल बी चेंज इन फेज. यहाँ पे फेज चेंज हो गया 0 डिग्री सेल्सियस पे. सो मोर एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड. आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी. जब आप ज़्यादा एनर्जी देंगे दैट मीन्स आप वहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं. जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वहाँ पे इफेक्टिवनेस ज़्यादा आएगी. बट इफ़ वी टॉक अबाउट वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, वाटर का कोई फेज चेंज नो. फेज इज योर स्टेट. वहाँ पे कोई स्टेट चेंज नहीं हो रहा. दैट मीन्स जब स्टेट चेंज हुआ आपने एनर्जी सेम रखी. हैंस लेस एनर्जी विल बी टेकन फ्रॉम द सराउंडिंग्स. नाउ सो एट द सेम टेम्परेचर, यही रीज़न है कि यहाँ पे 273 Kelvin पे आइस ज़्यादा इफेक्टिव होती है कूलिंग में एज कम्पेयर टू
वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस. सिंपल सा कॉन्सेप्ट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. सिस्टम से हीट लिया, सिस्टम को हीट दी. जब आपने सिस्टम से हीट ली तो आपने बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट ऑफ हीट ले ली, तो आप उसे लूज़ करेंगे तो आप अपना कूलिंग इफेक्ट देंगे. बट इफ़ यू हैव नॉट टेकन दैट मच ऑफ हीट तो आप में ज़्यादा इफेक्टिवनेस नहीं आएगी. सॉरी. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट प्रोड्यूसेस मोर सीवियर बर्न. कौन ज़्यादा सीवियर बर्न प्रोड्यूस करेगा, बॉइलिंग वाटर और स्टीम. यू नो दैट व्हेन वी कीप ऑन बॉइलिंग वाटर at 100 degrees Celsius it will convert into steam, but there is no change in temperature reading. That means it have acquired the latent heat of vaporization. So we say that steam has latent heat of vaporization, so it is more effective in burning than boiling water at 100 degrees Celsius. Now steam has more energy than boiling water. It possesses the additional heat of vaporization. So when steam falls on skin, जब steam skin पे गिरती है, it condenses to produce water. Water देगी वो आपको. To give out, it gives out that much of energy. वो इतनी एनर्जी आपको प्रोड्यूस करेगी. More heat than the boiling water. इतनी एनर्जी आपको बॉइलिंग वाटर से ज़्यादा मिलेगी. जब इतनी ज़्यादा एनर्जी मिलेगी दैट मीन्स आपको ज़्यादा इफेक्टिवनेस होगी. एंड इफेक्टिवनेस क्या है यहाँ पे, कि आपको यहाँ पे सीवियर बर्न्स होंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको ABCD बताना है इस फॉलोइंग डायग्राम में. नाउ द फर्स्ट इज व्हेन यू आर कन्वर्टिंग सॉलिड टू लिक्विड. आप सॉलिड से लिक्विड में जा रहे हैं तो आप क्या यूज कर रहे हैं, दैट इज फ्यूजन. और यू कैन से इट एज अ मेल्टिंग ऑल्सो. नाउ लिक्विड से गैस में जा रहे हैं, दैट इज वेपराइजेशन. फाइन. Now, when you convert this gas into liquid, it is known as condensation. This is your condensation. And liquid to solid, D, it is also solidification. Solidification क्यों, because यहाँ पे liquid water droplets convert और solid state में, so it is solidification. It is a form of condensation only, but यहाँ पे solid state आ जाती है, that's why it is solidification. Now next, this is your E, solid to gas directly, that is your sublimation. Gas to solid directly, that is sublimation. Okay. Now next is, आपसे मैंने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन पूछा था, दैट इज स्पॉन्ज दो कंप्रेसिबल इज अ सॉलिड. आपका स्पॉन्ज कंप्रेसिबल है बट स्टिल वो सॉलिड है. इट वॉज ऑल बिकॉज स्पॉन्ज हैज़ अ माइन्यूट होल्स ट्रैप्ड. कुछ स्पॉन्ज के अंदर, जैसे आप सोफे पे सिट कर रहे तो सोफे में स्पॉन्ज लगी हुई है, तो वो स्पॉन्ज क्या है, उसके अंदर माइन्यूट माइन्यूट होल्स है जिसमें एयर ट्रैप हो जाती है. तो जब एयर ट्रैप हो गई तो वो फ्लफी से बन गए, फूल गए. बट वेन यू सिट ऑन दैट इट विल कंप्रेस, सारी एयर बाहर निकल जाएगी, एक्सेल आउट हो जाएगी सारी एयर. जब एयर बाहर रिमूव होगी दैट मीन्स वो स्पॉन्ज कंप्रेस हो गई है. नाउ अ स्पॉन्ज हैज माइन्यूट होल्स इन विच एयर इज ट्रैप्ड, जहाँ पे एयर ट्रैप्ड है. ऑन अप्लाइंग प्रेशर और फोर्स देयर इज एक्सपेल्ड आउट, एयर बाहर निकल गई एंड द स्पॉन्ज गेट्स कंप्रेस्ड. ऑन रिलीजिंग प्रेशर, सपोज अब आप उठ गए सोफे से वापस, जब सोफे से उठे वापस तो क्या हुआ, आपके स्पॉन्ज का प्रेशर रिलीज हो गया. स्पॉन्ज पे कोई प्रेशर नहीं है, आपके सोफे पे कोई प्रेशर नहीं है. जब सोफे पे कोई प्रेशर नहीं है दैट मीन्स उसके अंदर एयर वापस फिल हो जाएगी एंड वो वापस स्पॉन्जी नेचर का बन जाएगा एंड वो अपनी ओरिजिनल शेप ले लेगा. दैट्स ऑल फॉर टुडे.